Like I think आपका thought process उस समय ये रहा होगा that you wanted to learn. We built it from scratch. Like I was the second engineer who joined in India, and that time we didn't need to code in the laptop. We had to do paper and pen. So I used to practice on paper and pen. What was your motivation and like how did you actually prepare yourself कि आप Amazon join कर पाए? तो इनिशियली मेरे कुछ इंटरव्यूज तो एकदम ऐसे बेकार गए. मेरा पहला इंटरव्यू शायद सिस्को में था और इतना बुरा गया. माई गोल वॉज लाइक आई प्रैक्टिस DSA 1 hour every day. That's it. Just 1 hour. उस टाइम पे आई वाज इतना कॉल आता था कि मैं परेशान हो जाती थी. So what do you think are the most important things which has to be there in your resume if you are looking for a job as a software engineer? Or Hi everyone, my name is Shivangi and I am a software engineer. आज की पॉडकास्ट थोड़ी स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है. शी इज़ अ सीनियर फ्रॉम माई ऑफिस ओनली. बैक देन जब शायद मैं 11th स्टैंडर्ड में रही होंगी तो शी वॉज इन माई ऑफिस. सो येस, आई हैव सृष्टि दी विद मी टुडे. She has worked in startups as well as in FAANG companies. So she is currently working in Google and she has 8 years of work experience as a software engineer. So आज के podcast में we'll talk to her. From her experience, we'll get to know कि क्या वर्क कल्चर और वर्क लाइफ बैलेंस, करियर ग्रोथ एंड इन सब में क्या डिफरेंस होता है when you're working in a startup or when you're working in a FAANG company like Amazon, Google and all. And what sort of hierarchy and salary ranges we can expect as a software engineer further in our careers. So, hi Shrishti Di, can you give a short introduction of yours to our audience? Hello Shivangi, and thank you for inviting me for this podcast. Yeah, I have 8 years of experience, and in this like in these years I have worked in like multiple companies. So my first company, as you mentioned, was Sandvine Technologies, and after that I worked in Amazon for a few years, and then I joined a startup, and from there I joined Google. Yeah, so right now I am a senior software engineer at Google. Yep. Tudi, I saw your LinkedIn profile, like you started your journey from Sandvine, then you switched to Amazon, and उसके बाद I guess before joining Google, there is another company which you joined, which is a startup. So can you elaborate about the name of the company and what that company does? Yeah, so this is a startup, fintech startup. Its name is Deserve. और यहाँ इसमें हम लोग मतलब एक मल्टी टेनेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, और हमारे मेन कस्टमर्स है लाइक brands could be big banks, or it could be like one of our recent customer was AMC. We also provide a multi-tenant like white label apps. तो उससे क्या होता है कि जैसे HDFC बैंक ने एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, तो हम लोग एक ऐप भी प्रोवाइड करेंगे जो HDFC का मतलब जो उसका लुक और फील है ऐप का, वो HDFC से मैच करेगा. और उसके बाद फिर वो जो ऐप है that can be used by a customer to apply for credit card, and you can get a credit card within like 5 minutes of time, and you can start using it. It's one of my favorite products which I have built in my career because because I built it from like we built it from scratch. Like I was the second engineer who joined in India. And this was like the starting of the product, so I got the opportunity to like work on it from scratch. So I wouldn't say like obviously there are like lot of engineers involved, but I was also part of it. And I saw the product grow like from zero to now we have like these many customers. Seems very interesting. तो दी जैसे जब हमारी स्टार्टअप्स में जॉब लगती है ना, and when we know that there are very few people working in that company and we have to work end to end, starting from scratch till the deliverable. So people actually get scared ki will they be able to work or not, and sometimes they also have the thought that should I join this startup or not. So how did you take that decision ki I should trust this company and I should join, because you said that you were the second engineer. So वो confidence कहाँ से आया leaving Amazon and going to that place? So the confidence उससे इसीलिए आया क्योंकि मेरे एक सीनियर है, उनका नाम स्वप्निल है, वो मेरे साथ Amazon में काम करते थे. He was a senior to me and we worked closely together. और उसके बाद फिर जब हम लोग डिज़र्व मतलब वो पहले ही डिज़र्व चले गए थे, फिर मैं I continued working in Amazon like
for a while, and then one day like I was just talking to him informally. तो फिर वो बोले कि ऐसा product है और interesting है, if you're interested you can like come and join me. And he was like a senior member in the company, like he's a director of engineering in Reserve. So and then फिर मैंने थोड़ा सोचा उस टाइम पे बहुत सारा कन्फ्यूजन ऑब्वियसली हुआ था, पर मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा लॉस क्या होगा. मतलब वर्स्ट केस में कंपनी विल नॉट सर्वाइव, बट आई एम एन इंजीनियर, so you'll get a job somewhere else. Yeah, I'll get a job. Yeah, so Yes. मैं उस माइंडसेट से गई. उसके बाद फिर वहाँ पे जब काम करना शुरू किया तो मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना, लिटरली मतलब इतना सारा कोड, मतलब तुरंत सुबह को ये डिसाइड किया ये फीचर इम्प्लीमेंट करेंगे और रात तक वो इम्प्लीमेंटेड है और लाइक हमारे CTO के पास अवेलेबल है. तो उस टाइप का पेस था हमारे पास, तो वो बहुत बहुत मज़ा आया. और बेस्ट पार्ट ये था क्योंकि सब कुछ स्क्रैच से बन रहा था ना, तो सब कुछ सीखने के लिए इतना सारा अपॉर्चुनिटी था. मतलब ऑथेंटिकेशन कैसे होता है, मोबाइल के अंदर कैसे ऑथ होगा, और फिर बैकएंड में ऑथेंटिकेशन कैसे होगा, सब कुछ मतलब पूरा एंड टू एंड फ्लो जो होता है, डेटा मोबाइल से बैकएंड पे कैसे पहुंचा, वो पूरा फ्लो क्लियर हो गया. मतलब इतना इंटरेस्टिंग था वो, मतलब वो जर्नी. So I think in some way to take this sort of decision, it's very important to build connection with people and talk to like-minded people and understand actually what do you want. Like I think आपका thought process उस समय ये रहा होगा that you wanted to learn instead of just sitting behind and एक बड़ी से टीम में छोटा सा काम करने से better था. You would have thought कि you can build anything from scratch and that will like enhance your skills. Correct. So I think that was your thought process. Yeah. So even now, my thought process is same. Like I like to learn as much as possible, especially whatever is related to technology. But in general भी मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे मैं फोटोग्राफी सीखती हूँ और मतलब ड्राइंग करती हूँ. फिर like I also started a podcast to just to improve my communication skills. So all those things I keep on doing so that like my skill set keeps on improving. Like I'm not That's the right. same version of myself. The one interesting question कि आप Sandvine में थे, which is not a very known company, not a very big company. I think अब भी जाके Sandvine में some 400 employees आते हैं. I think that time there were only 150 employees. What was your motivation and like how did you actually prepare yourself कि आप Amazon join कर पाए? तो इनिशियल थॉट प्रोसेस मतलब सैंडवाइन वाज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस टू वर्क फॉर, क्योंकि वो मेरा पहला कंपनी था. और सैंडवाइन में बेस्ट पार्ट है कि मतलब सब कुछ लिनक्स ओरिएंटेड है, सारा वर्क स्पेस, वर्क इन्वायरमेंट सब कुछ. तो उसके वजह से मेरे को काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला जो इनिशियल में बहुत सारे डेवलपर्स को मतलब नहीं मिलता अपॉर्चुनिटी. सब लोग लाइक UI में चले जाते हैं और मतलब ID काइंड ऑफ डेवलपमेंट करते हैं, बट मुझे लिनक्स काइंड ऑफ डेवलपमेंट करने को मिला. विम वाज आवर मेन एडिटर एंड दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. तो भी सेम है. सेम दैट इज मतलब विम से मेरे को मतलब प्यार हो गया था. फिर मैं Amazon गई तो फिर मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था कि यार आई वांट विम. तो वैसा है. मतलब सैंडवाइन में काफ़ी मतलब इट वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस आई स्टार्टेड माय वर्क फ्रॉम. 2.5 years मैंने स्पेंड कर लिया था. फिर मेरे फ्रेंड्स दे स्टार्टेड लाइक सर्चिंग फॉर जॉब्स. देन आई ऑल्सो गॉट मोटिवेटेड. तो फिर ऐसा कुछ स्पेसिफिक रीजनिंग नहीं था, बस मैंने सोचा चलो देते हैं इंटरव्यूज. हाँ, इंटरव्यूज दे करके देखते हैं. तो इनिशियली मेरे कुछ इंटरव्यूज तो एकदम ऐसे बेकार गए. मेरा पहला इंटरव्यू शायद सिस्को में था और इतना बुरा गया. मैंने सोचा यार दिस इज नॉट पॉसिबल. लाइक यहीं पे आराम से रहते हैं, चिल मारते हैं. माई गोल वॉज लाइक आई प्रैक्टिस DSA 1 hour every day. That's it. Just 1 hour. हाँ, that's it. Okay. हाँ, so 1 hour every day. और वही करती रहती थी, प्रैक्टिस करती थी. और साथ में फिर For how long? जैसे इंटरव्यू देना शुरू किया, खराब गया, फिर मेरे को लगा कि नहीं थोड़ा पढ़ना चाहिए. तो मतलब वो पढ़ते रहे. और
मतलब लकीली मेरा कॉन्सेप्ट्स डीएसए का क्लियर था, कॉन्सेप्ट्स क्लियर था, तो फिर सीधे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया था. तो क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो फिर मैं हार्ड क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करती हूँ कभी भी. हमेशा जब शुरू कर रही हूँ तो इजी क्वेश्चंस पिकअप करो, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है. क्वेश्चन इज सॉल्व्ड. हाँ, और एंड फिर लाइक इजी क्वेश्चंस जब ऐसा हो जाए कि मतलब 5-10 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है या उससे भी कम में, तो फिर मीडियम क्वेश्चंस में जाते हैं. और जब इजी मीडियम मतलब इनफ प्रैक्टिस हो जाता है ना, तो फिर लाइक यू आर रेडी फॉर इंटरव्यूज. और उस टाइम पे मतलब लीड कोड नहीं था, तो मैं मोस्टली गीक्स फॉर गीक्स यूज करती थी. तो फिर वहाँ पे टॉप अमेजॉन क्वेश्चंस, टॉप माइक्रोसॉफ्ट क्वेश्चंस, मतलब you used to read it. Yeah, read and try to solve it. And that time we didn't need to code in the laptop. We had to do paper and pen. So I used to practice on paper and pen. So, but writing on paper and pen is very slow process. You have to manage your time properly, and then doing dry run also on paper is very slow compared to what you do in the laptop. So आई वुड से कि वही थोड़ा स्लो होता है, लेकिन उस टाइम पे वही प्रोसेस था, तो वैसे ही करते थे. और फिर लास्ट तक मेरे को 2 कंपनी से ऑफर आ गया, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन. वाओ, दो बड़ी कंपनीज. हाँ, और फिर उससे पहले बहुत सारे फेलियर वाले इंटरव्यूज थे, और बहुत मतलब कुछ और कंपनीज में भी मेरे को जॉब मिल गया था तब तक. मतलब इन सब में पूरा टाइमलाइन आपका कितना लगा? अभी right from your first failure to your first offer letter? मेरे को एक्चुअली याद नहीं है प्रॉपरली, बट आई थिंक 3 to 6 months तो लगा ही होगा ऑलमोस्ट. हाँ, अप्रॉक्स 3 to 4 months तो लग ही जाता है प्रिपरेशन में, if you dedicatedly do any preparation. and multiple failures तो आते ही हैं बीच में. हाँ, तो वो नॉर्मल है. मतलब इफ यू डू, जब आप इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, even if you have cracked big companies, that was in the past. You have to start practicing again. So you have spent pretty much time, 2.5 years in Sandvine. Okay, so हम काम करते करते काम अच्छा होता है तो we feel a bit settled. तो हमें like how should we decide कि now this is the right time to switch, and should we actually switch or not, because we also get hikes in the company. So is it important to switch, and what is the right time to switch? So like, is it important to switch? I wouldn't say yes, because in the same company also, like I have friends who have stayed in Sandvine and like grown, and then after like multiple years of experience, like 5-6 years of experience, they have left the company. Switching is good in a way that you learn multiple technologies, different kind of technology. So one company works in a specific technology, second company works in a different technology, and the what do you say, learning curve थोड़ा सा diverse हो जाता है. But if you decide to stay in the same company and if you are enjoying the company, then it's not mandatory to switch. Like I have seen lot of people who have been in the same company and who have who are earning equal or more than like the person who is switching a lot. So it's not that you will earn more when you switch more. Okay. So like this brings a curiosity in me कि अगर हम सेम कंपनी में स्टे करते हैं तो ईयर बाय ईयर हमारी ग्रोथ हम कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इफ वी स्विच तो हम कितना ग्रोथ ऑल ऑफ अ सडन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड एक डिसेंट नंबर क्या होगा कि मतलब ओके लेट्स आई एम गेटिंग 10% हाइक, शुड आई जॉइन अनदर कंपनी और शुड आई स्टे इन द सेम कंपनी, और इफ आई एम गेटिंग 50% हाइक देन शुड आई लीव और नॉट. तो वो डिसीजन कैसे लेना होता है? तो लाइक इनिशियल ईयर्स जो होते हैं ना, उस टाइम पे हमारी सैलरी कम होती है, काफ़ी कम होती है कंपेयर टू जब आप मतलब कोई सीनियर लेवल पे पहुंच जाते हो. तो जब आप स्विच करते हो ना, तो आपको ऐसा लगेगा ओ माय गॉड मेरे को 100% हाइक मिल गया या 50% हाइक मिल गया. और वैसा होता भी है बहुत सारे केसेस में. कोई स्विच कर रहा है बहुत सारा, तो फिर उसकी वजह से आप स्विच करो, ऐसा नहीं होता है. You can decide to not switch and still grow in your career. On what basis should we decide? If you're enjoying your job and if you're learning and if you're getting enough opportunities to learn and grow, so
you can still stay in the same company. You don't have to switch. But अगर आप if you are not learning, you're feeling stuck या फिर थोड़ा मतलब मज़ा नहीं आ रहा है काम करने में, तब आप switch कर सकते हो. You can switch. या फिर if you want to change the what do you say, the role you are working. मतलब कोई लोग QA है, they want to become a software engineer, तो वो भी कर सकते हैं. मतलब वो सेम कंपनी में भी स्विच कर सकते हैं और दूसरे मतलब कंपनी में भी देख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं. ठीक है. तो मतलब ईयर ऑन ईयर सेम कंपनी में ग्रोथ कितना होता है एंड ऑन एन एवरेज कितना हाइक एक्सपेक्टेड होता है व्हेन यू स्विच? सेम कंपनी में 10 to 15% ऐसा कुछ है of the base salary. But again, if you get promoted, then there is 30% hike. So yeah, something like it's not always the same. But this is like a generic. On an average, we can take a number. This is a generic number. And when you switch companies, then it can like range from 20% to 50%, 60% ऐसे करके भी हो सकता है कुछ भी. Okay, great. हाँ, लेकिन दिस इज फॉर इनिशियल ईयर्स. फिर बाद में व्हेन यू ग्रो बिकम सीनियर, फिर स्विचिंग मतलब मैं अब पर्सनली मैं ज़्यादा स्विच नहीं करना चाहती. So since you worked in startups also and you have worked in FAANG companies also, so what do you think work wise and responsibility wise, job role wise या understanding wise, startup better होता है या FAANG companies better होती हैं? And like how should we decide that should we target for startup companies or FAANG companies? मैं startup इसीलिए ज्वाइन किया क्योंकि मेरे को आइडिया बहुत अच्छा लगा और मतलब अपॉर्चुनिटी सही लगा एंड ऑल दोज थिंग्स. तो बहुत स्टार्टअप कंपनीज और बिग टेक कंपनीज जो भी है ना, दोनों में व्हाट डू यू से काम सिमिलर ही रहेंगे. मतलब you will have a problem to solve and you will be solving it in some way or the other. ठीक है. बिग टेक कंपनीज में मेरे एक्सपीरियंस के जितना मेरा एक्सपीरियंस है तो उसमें थोड़ा व्हाट डू यू से the pace at which startup works is faster compared to big companies, because in big companies we have to make decisions. Is this a good decision of architecture, or like there are a lot of decisions in which we need to take. अच्छा. मतलब पर ये तो हमने भी नोटिस करा है ये चीज़ कि मतलब स्टार्टअप्स में जनरली पेस थोड़ा सा फास्ट होता है क्योंकि जल्दी डिलीवरेबल्स दे रहे होते हैं और दे लाइक हैव टू कम्पीट इन द मार्केट मोर एज कम्पेयर टू द एस्टैब्लिश्ड कंपनीज. डेडलाइंस थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती हैं एंड टीम्स छोटी होती हैं तो वर्क प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होता है. हाँ, वो होता है. बट वर्क प्रेशर को लाइक इफ यू थिंक ऑफ इट इन अ पॉजिटिव वे, यू आर लर्निंग सो मच लाइक व्हेन यू आर डूइंग दैट. हाँ, एंड मतलब जब जो पेस फास्ट होता है ना, तो फास्ट पेस में हम लोग जैसे तो क्विक इम्प्लीमेंटेशन, तुरंत इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चले जाते हैं, विच इज ऑल्सो नॉट द राइट थिंग टू डू. हाँ, वी शुड फर्स्ट थिंक ऑफ द सोल्यूशन, बिकॉज एक चीज़ जो है मल्टीपल वेज में सॉल्व हो सकते हैं और उसको बेस्ट पॉसिबल वे में सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वो चीज़ हमेशा सोचना चाहिए बिफोर गेटिंग इनटू इम्प्लीमेंटेशन. So basically there are pros and cons of both the companies. So it totally depends on you. What are you expecting from your career? What are you expecting from your job? It should be your learning and your growth first. Ki down the line in 2-3 years, where do you see yourself? Or 5 years, where do you see yourself? So that should be, I think that should be your way of taking a decision. So Heidi, what is the difference in the interview processes? Like I have worked in only startup companies till now. I was in VVT and Technologies earlier, then I joined Sandvine. दोनों ही छोटी companies हैं. So I have not even tried for FAANG till now. So I really want to know that what is the difference in the interview processes of both the types of companies. So interview process for startups is more implementation oriented. मतलब you will be given a problem statement और 2-3 दिन दिया जाएगा, फिर आप उसको implement करके और फिर अपना कोड शेयर करो. और big tech companies mostly focus on data structure and algorithms. And then like if you're in a senior role, like if you're applying for senior role, then there will be system design rounds, like multiple of them. Yeah. High level also, low level also. हाँ, HLD LLD दोनों.
ओके, तो पूरा मतलब नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज में कितना क्या डिफरेंस होता है एंड डिफिकल्टी लेवल क्या होता है? So difficulty level depends, like it's up to your luck. हाँ, ओके, हाँ, मतलब लेट्स टॉक इन जनरल इन दैट केस. फैंग कंपनीज के लिए इजी टू मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली. ओके. हाँ, मतलब फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू अभी तक मैंने वैसा ही एक्सपीरियंस किया है. और लाइक सिस्टम डिज़ाइन तो जेनरिक होता है, मतलब डिज़ाइन लाइक जोमेटो और दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर. एंड तो जैसे एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डिजाइन्स अगर हम पढ़ के चले जाएं, जैसे ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी या क्रेड, इन सब टाइप के कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ डिजाइन्स अगर हम पढ़ के जाएं तो काम हो जाएगा. कुछ सिमिलैरिटी होती है बिकॉज लाइक आई हैव नेवर स्टडीड सिस्टम डिजाइन. हाँ, क्या? हाँ, तो फिर मतलब सिस्टम डिज़ाइन पढ़ने के लिए 2-3 बुक है जो मुझे बहुत पसंद है. तो एक है डिज़ाइनिंग माइक्रो सर्विसेज बाय सैम न्यूमैन, एंड फिर सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू बाय एलेक्स और XU. मतलब एक बार पढ़ लो तो उससे क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है. ठीक है, एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसके बाद फिर सिस्टम डिज़ाइन राउंड्स को मतलब अप्रोच कर सकते हैं. तो फिर उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मतलब रियल वर्ल्ड का कोई भी चीज़ उठा करके कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके, तो आपके अकॉर्डिंग लाइक कोई भी अच्छी कंपनी क्रैक करने के लिए हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे इनिशियली फोकस करना चाहिए, एंड देन फर्दर हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर लर्निंग इन टर्म्स ऑफ actually theoretical knowledge, because काम तो हम कर रहे हैं but then we get stuck to a particular technology only, but not every company asks you कि तुमने किस टेक पे काम किया, उस पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते. तो मतलब हमें किन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए while we are working और एज अ फ्रेशर ऑल्सो, एंड देन फर्दर कैसे इम्प्रूव करना चाहिए उस चीज़ को? इफ़ यू आर अ फ्रेशर या फिर 1 या 2 years ऑफ एक्सपीरियंस है तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम तो एकदम मस्ट है, बहुत मस्ट है. ठीक है, उसके बाद कुछ कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने मेरे से OS के क्वेश्चंस पूछे थे काफ़ी, और वो भी इन डेप्थ वाले. मतलब तो अगर वो कॉन्सेप्ट्स पता हो, क्लॉक्स कैसे चलते हैं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम वाले वो सब, तो फिर उस लेवल के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेते हैं. और थोड़ा सा कंपाइलर्स इसीलिए क्योंकि फिर उससे हम लोग का वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि वेरिएबल्स कहाँ पे स्टोर होते हैं मेमोरी में, और हीप और स्टैक क्या होता है, वो सब चीज़. तो वो थोड़ा मतलब बेसिक तो पढ़ लेना चाहिए कंपाइलर का. ओके, सो मतलब आई वुड से कि वो जो बीटेक के सब्जेक्ट्स थे, आउट ऑफ 40 सब्जेक्ट्स, इफ यू प्रिपेयर फॉर लाइक 5 to 6 subjects, इसमें DSA and DP is must, which is not counted as a subject but you have to do it. Yeah, that's important, huh? Yeah, then comes operating system, then there is also computer networks which you can go ahead and like write, and then there is compilers as Shrishti mentioned. Apart from that, the कोई और subject जिसमें मतलब like especially for interview preparation we have to focus in this initial years? Databases also, right. सो दी मतलब जैसे ये तो चलो इनिशियल ईयर्स में हो गया, बट इसके बाद जैसे 2 years बाद स्विच करना है या 2.5-3 years बाद स्विच करना है, तो इज इट ओनली सिस्टम डिज़ाइन दैट वी हैव टू स्टडी समथिंग एक्स्ट्रा, और कुछ बेसिक फिर से ब्रश अप करना पड़ता है? मेरे को तो पूछ लिया था जब मैं 2.5 years ऑफ एक्सपीरियंस की थी, तो फिर माइक्रोसॉफ्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस पूछ लिए थे, बट इट्स ऑल अपॉन योर लक. और सिस्टम डिज़ाइन आई थिंक 3+ years में तो चाहिए होता है. पूछते हैं. हाँ. ओके. मतलब अगर आप 1 साल में स्विच कर रहे हो, 2 साल में स्विच कर रहे हो, तो थिंक इट इन दिस वे कि पुरानी चीज़ें, बीटेक वाली चीज़ें पूछी जा सकती हैं, और किस टेक स्टैक पे काम किया, यू शुड हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट. बट हाँ, 3 years के बाद अगर आप स्विच कर रहे हो, सो देर आर कपल ऑफ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स विच यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड कीप अ थरो नोट ऑफ इट सो दैट यू कैन एक्सप्लेन इट इन योर इंटरव्यू प्रोसेस इफ आस्क्ड. हाँ, और इवन व्हेन आई वाज गिविंग सिस्को इंटरव्यू, तब उन्होंने मुझसे लिनक्स के कॉन्सेप्ट्स काफ़ी पूछ लिए थे, बहुत ज़्यादा. ओके, बिकॉज यू ऑलरेडी वर्कड ऑन लिनक्स, आपने मेंशन किया होगा. हाँ, तो वो भी पढ़ लेना चाहिए थोड़ा. मतलब इट डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन विच कंपनी और इंटरव्यूइंग फॉर, एंड उसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो मतलब इट डिपेंड्स ऑन इंटरव्यूअर और उनकी एक्सपर्टीज़ के ऊपर भी. बट हाँ, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लाइक एक लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस, मेरे लिए पर्सनली पाइथन और C++ है, उसमें एक्सपर्टीज का लेवल अच्छा होना चाहिए. So, what all platforms did you use to apply for jobs? Like, and how do you reach out to recruiters? क्योंकि ये भी एक बहुत important factor होता है that we prepare, but we never know कि
समझ नहीं आता कि कहाँ कहाँ अप्लाई करें एंड किस किस कैसे रिक्रूटर्स को रीच आउट करें. सो हाउ डिड यू यूज टू डू इट? सो इनिशियल ईयर्स में मैंने लिंक्डइन और naukri.com यूज़ किया था. अभी मुझे नहीं पता नौकरी कितना क्या अब मतलब. तो मुझे लगता है रिलायबल ही नहीं है. मतलब हाँ, वी हार्डली उस- गेट अ कॉल फ्रॉम नौकरी. ओके, आई डोंट नो. उस टाइम पे आई वाज इतना कॉल आता था कि मैं परेशान हो जाती थी. पर अभी के टाइम पे आई थिंक लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म मोस्टली. यस दैट्स हाँ राइट. हाँ. तो उस पे मतलब मैं ये करती थी, द कंपनी विच आई वांट टू वर्क ऑन, तो सर्च करती थी रिक्रूटर एट दिस हाँ. कंपनी, और फिर उसके सारे रिक्रूटर्स को लिंक्डइन रिक्वेस्ट भेज दी. कुछ एक्सेप्ट किए, कुछ नहीं किए. हाँ. फिर जब एक्सेप्ट कर ले तो मैसेज करो, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब. Right. What you guys can do is you can curate a list of companies in which you are interested and the job profiles. फिर उन कंपनीज के रिक्रूटर्स को तुम रिक्रूटर भी नहीं, आई वुड से कि इफ यू रीच आउट सम पीपल ऑल्सो ऑफ दैट कंपनी, तुम कंपनी का नाम डालो लिंक्डइन पे. If you reach out to the people of that company and you search on the career portal of that company about the job ID, किसके लिए तुम interested हो, you can just mention the job ID and ask people for referral as well. This also works ना? हाँ, it works, but like जब for freshers, because the हाँ. crowd is too much, Yeah. so sometimes referral also doesn't like it works. It obviously it's better than applying, just going and applying to the website. But yeah, if you are able to talk to the recruiter directly, that will the be best. Then second best option is like getting referrals, and then the third option is applying directly on the website. Now comes a very crucial part, and that is our resume. So what do you think are the most important thing which has to be there in your resume if you are looking for a job as a software engineer or like that? मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसे tools और कुछ languages या कुछ problem solving skills, कुछ चीज़ें mentioned ही होनी चाहिए resume. What are those skills according to you? तो मैं अपने रिज्यूमे में बेसिकली बस ये रखती हूँ, मेरा जो टॉप लैंग्वेजेस है विच आई वर्क ऑन, लाइक पाइथन, C++. Languages? हाँ. Then you can also add like languages which you are familiar with, all those things. Then your role is important. मतलब you have to mention in your resume. Like if you are a fresher, obviously you'll not have a software engineer. कुछ projects डाल सकते हैं and focus on the technologies which you have worked in those projects. Like if you have used AWS or if you have used Python, if you have used, तो वो सब चीज़ें अगर आप अपने रिज्यूमे में डालोगे तो that is good. एक डिसेंट इंजीनियरिंग करियर का ग्रोथ कैसा होता है, लाइक इन टर्म्स ऑफ करियर ग्रोथ ऑल्सो और इन टर्म्स ऑफ CTC ऑल्सो? कि मतलब जैसे अभी आई मीन आई थिंक यू आर गेटिंग माई क्वेश्चन कि मैं सैलरी पूछना चाह रही हूँ कि 1-2 साल में हमारी सैलरी हम कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू हैव स्टार्टेड एट अ डिसेंट लेवल. तो वो ग्रोथ कर्व कैसा होता है, बिकॉज यू हैव 8 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो आपने काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं. सो आई एम रियली इंटरेस्टेड टू नो दैट. ओके, सो सबका ग्रोथ डिफरेंट होता है मोस्टली, बट इन द एंड लाइक आफ्टर फ्यू इयर्स एवरीवन एंड्स अप अर्निंग अप्रॉक्सीमेटली द सेम. दैट इज माय एक्सपीरियंस. ठीक है. Okay. और डिटेल्स में इफ यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग द डिटेल्स ऑफ सैलरी, एक वेबसाइट है levels.fyi करके. यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस वेबसाइट एंड लाइक check. It's an awesome website to like get the real picture. Okay, and I was asking about the hierarchy as well. So we start with SD1, then finally मतलब SD2, 3, 4, 5 कब तक होता है, फिर कब हम आर्किटेक्ट बनते हैं, वो वाला लेवल कब आता है? तो वो भी आप levels.fyi में एकदम इजीली देख सकते हो. लेकिन जैसे अभी मेरा करंट रोल है सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर. तो जब जैसे लाइक व्हेन यू आर बिटवीन 7 to 10 या 11 years of experience, then you become senior software engineer. Before that you are software engineer SD1, SD2, and then SD3 is like similar to senior software engineer. And then उसके बाद फिर आता है staff engineer, senior staff engineer. उसके बाद फिर आता है like this is उसके बाद फिर शायद प्रिंसिपल इंजीनियर आता है, मुझे कभी नहीं पता. ऐसे करके बढ़ते जाता है, ऊपर जाता है. लाइक देयर आर 2 paths. लाइक यू कैन बिकम अ मैनेजर, यू कैन ऑल्सो बिकम कंटिन्यू टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. सो आई हैव पर्सनली चोजन टू कंटिन्यू टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट देयर आर लाइक अदर ऑप्शंस एज वेल. So eventually you want to be a chief technical officer
and not the CMO or CEO. Right? But that obviously that doesn't mean कि उनका work less interesting है या not that hard. No, it's about your personal interest, right? So okay, let's conclude. बात करके आपसे मजा तो बहुत आ रहा है, but I know we have a time constraint, so let's wind it up with your advice to our viewers, to like the freshers who are getting a leap in their software industry or who are actually working professionals. So उनके लिए आप क्या advice देना चाहोगे? तो उनके लिए एडवाइस होगा इनिशियल ईयर्स में ऑब्वियसली लर्न एज मच एज यू कैन focus on like getting good at Linux, work on your like typing speed. It's very important. ऐसा लगता है कि यहाँ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट टाइपिंग स्पीड इम्पोर्टेंट है. हाँ, उसके अलावा नेटवर्क अच्छा ट्राई टू बिल्ड अ नेटवर्क. So yeah, that's right, Dee. It's actually very important to build a good network with people. And एक चीज समझने की जरूरत है कि it's your career and it's your life. You have to do it throughout. तो you have to be the person who's responsible for it. So start working hard towards it. ये नहीं कि मतलब 2 साल बाद तुम्हें 3 साल बाद तुम्हें regret हो रहा है that you should have done this earlier. So start it the day when you get the motivation. Start it at that time only. So I really enjoyed talking to you, Dee. It was great interacting with you. So thank you so much for coming to my channel and being a part of the podcast. So I hope you guys enjoyed the podcast as much as I did. So if you liked the video, don't forget to hit that like button, share it to your friends and family, subscribe to my channel and hit the bell icon so that you get notified जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो. Thank you so much.